Morning students. Actually, you all right. I have completed the first part of the second chapter, the sound of music. This is the second chapter, the sound of music, and I have completed the first part of this chapter. Evelyn Graney listens to sound without hearing it. Now let us see the second part of this chapter, the Shehnai of Bismillah Khan. The Shehnai of Bismillah Khan. This is one of the most inspirational story which you are going to study, which you are going to see. First of all, let's see, before you read, do you know these people? What instruments do they play? You have to see the picture of these people and you have to tell which instrument do they play. Okay, and that's your work. The first para of this chapter, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a still unpleasant sound. Students, there was a famous king, Aurangzeb, of his time, who did not allow to play pungi in his court because it was very painful to the ears. The sound of the music of pungi was very painful to the ears. That's why he did not allow the pungi to be played in his royal palace. Actually क्या है कि इतिहास में, हिस्ट्री में एक किंग हुआ करता था, एक एम्परर हुआ करता था, जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने पुंगी को रॉयल पैलेस में बजाने से मना कर दिया, क्योंकि इसका जो साउंड था ना, इट वॉज वेरी पेनफुल टू द ईयर्स। कानों में बहुत ज्यादा कर्कश आवाज उसकी थी, कानों में बहुत ज्यादा चुभता था वो, इसीलिए उसने बजाने से मना कर दिया। Pungi became the generic name for reeded noisemakers. जो इसके बजाने वाले थे, उन बजाने वालों से ही इसका नाम क्या पड़ा, पुंगी पड़ा। एक जेनरिक नेम, कॉमन नेम, लोगों ने इसका नाम दे दिया, पुंगी दे दिया। Few had thought that it would one day be revived. लेकिन उनमें से कुछ लोग का मानना ये भी था, कुछ लोग ये कंसिडर करते थे कि someday it will come into force, it will come into existence, it will take its place. एक दिन जरूर ये भी क्या नाम है, फेमस होगा, इसका भी एग्जिस्टेंस होगा एक ना एक दिन, आने वाले दिनों में। A barber thought that it would one day, a barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बार्बर था, बार्बर में स्नाई होता है, वन कट्स हेयर, तो वो रॉयल पैलेस में काम करता था। उसने डिसाइड किया कि इसकी जो टोनल क्वालिटी है, जो साउंड इसका है, क्यों नहीं इसको इम्प्रूव किया जाए, बेहतर किया जाए, पहले से और बेहतर किया जाए, अच्छा किया जाए। और उसी ने इस पर काम करना स्टार्ट किया, पुंगी पर इसने काम करना स्टार्ट किया। He was the first man to improve the quality of pungi. Then after it came forward, the maestro of Bismillah Khan. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उसने क्या लिया, एक पाइप लिया, pungi से बड़ा था, ब्रॉडर था, लॉन्गर भी था, ब्रॉडर भी था। उसने क्या किया, इसकी बॉडी पर जो पाइप थी, जो हॉलो था, उसने 7 होल्स बना दिए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. और जब उसने इसे बजाना शुरू किया, जो होल्स बने हुए थे, कभी इसे खोल कर, कभी इसे बंद कर
जो साउंड निकलता था ना वो मेलोडियस था, ब्यूटीफुल था, बहुत ही अच्छी आवाज निकलती थी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. और जब उसने इसे कोर्ट के सामने रॉयल पैलेस में उसने बजाना शुरू किया तो सभी लोग इम्प्रेस हो गए कि तो पुंगी से बेहतर है, बहुत ही अच्छी इसकी आवाज़ है। The instrument so different from the pungi had to be given a nickname. और क्योंकि पुंगी को मैंने बताया कि उसकी जो साउंड जो होता था वो काफ़ी श्रिल था, काफ़ी पेनफुल टू द ईयर्स था, कानों में काफ़ी ज़्यादा वो चुभता था, और इसीलिए इसको पुंगी ना कहकर कोई दूसरा नाम दिया गया, कुछ अलग नाम दिया गया। As the story goes, जैसा कि कहानी बताई जाती है, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai, क्योंकि इसे शाह के चैम्बर में, शाह के कोर्ट में पहली बार बजाया गया था, और किसने बजाया था? एक नाई ने बजाया था। यहीं से इसका नाम पड़ा शाह नाई, शाह नाई। तो वहां से इसका नाम पड़ा कि शाह के चैम्बर में, शाह के कोर्ट में इसको पहली बार बजाया गया था, नाई ने बजाया था, बाबर ने इसको बजाया था, और फ्रॉम देयर इट गॉट इट नेम। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, और इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या पड़ा? शहनाई पड़ा। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. शहनाई की जो आवाज थी, जो साउंड था, काफी ऑस्पिशियस कंसिडर किया गया, शुभ। ऑस्पिशियस में होता है शुभ, समथिंग इज गुड, ऑस्पिशियस इसको कंसिडर किया गया। और यही वजह है कि आज भी टेम्पल्स में और वेडिंग में जो वेडिंग्स जो हेल्ड होती हैं, जो नॉर्थ इंडियन जो वेडिंग होती है, उनमें आज भी आपको शहनाई की गूंजने की आवाज आपको सुनाई देगी। अभी भी यहाँ पर इस कस्टम को फॉलो किया जाता है। In the past, the Shehnai was part of the Nawbat or traditional ensemble of 9 instruments found at trial courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. पहले क्या हुआ करता था? पास्ट में क्या हुआ करता था? The Shehnai was part of the Nawbat. पास्ट में जो शहनाई था वो नौबत का एक पार्ट हुआ करता था। नौबत में होता है नाइन इंस्ट्रूमेंट्स, कलेक्शन ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, 9 इंस्ट्रूमेंट का जो कलेक्शन हुआ करता था उसी को नौबत कहा जाता था। ट्रेडिशनल इंसेम्बल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स जो रॉयल कोर्ट्स में पाए जाते थे। वहां पर क्या नाम है, 9 इंस्ट्रूमेंट्स में से एक आपका शहनाई का भी इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करता था। और अभी भी इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, अभी भी इसको, जैसे कि मैंने बताया, टेम्पल्स और वेडिंग में अभी भी इसको बजाया जाता है, लोग उसका यूज करते हैं, अभी वो कस्टम है, वो रिवाज है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर ले जाने का जो क्रेडिट जाता है ना, वो बिस्मिल्लाह खान को जाता है। अभी तक इसको क्या होता था, ये जो शहनाई के टेम्पल्स में, वेडिंग्स में केवल वहां पर ही प्ले ऑन किया जाता था, बजाया जाता था। लेकिन इस जो क्लासिकल स्टेज पर वर्ल्ड फेमस जब होने की अगर बात है, अगर इसको किसी ने वर्ल्ड फेमस किया तो मैस्ट्रो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसको फेमस किया जब उन्होंने इसे बजाना स्टार्ट किया। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri chant, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. 5 साल के जब बिस्मिल्लाह खान थे, when he was 5 years old, जब वो 5 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे। एक टेम्पल हुआ करती थी, एक मंदिर हुआ करती थी बिहार में। बिहार में एक जगह है, एक स्टेट है जिसका नाम है डुमराव।
डुमराव के पास एक तालाब था और उसी तालाब के पास एक गिल्ली डंडा खेला करते थे। वहां पर एक टेम्पल था और उस टेम्पल में जब उनको चांसेस मिलते थे, अपॉर्चुनिटी मिलती थी वहां पर शहनाई बजाने की, तो वहां पर वो बजाते थे। और जब वो बजाकर निकलते थे बाहर तो उन्हें प्राइज के रूप में, एक इनाम के रूप में 1.25 kg का एक लड्डू दिया जाता था। लोगों के इतना पसंद आता था उनके शहनाई बजाने, तो उन्हें इनाम के रूप में वो चीज़ मिलती थी। वहाँ के जो लोकल महाराजा थे वो उन्हें दिया करते थे। गाना गाते थे भोजपुरी में, चैत नाम है उसका। दिस हैपेंड 80 years ago, ये बात कब की है? 80 साल पहले की है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत रत्न। भारत रत्न बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो किसी को मिलता है जो अपने देश के लिए कुछ करते हैं। तो भारत रत्न अवार्डेड किया गया था, नवाजा गया था, इन्हें मिला था भारत रत्न। और बहुत ही लकी थे जिनको भारत रत्न मिला है। बहुत ही कम लोगों के चांसेस मिल पाते हैं जो भारत रत्न से उनको अवार्ड किया गया। बॉर्न on 21 March 1916, Bismillah Khan belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को इनका बर्थ मार्क किया जाता है और ये बिहार में एक वेल नोन फैमिली में पैदा हुए थे, एक म्यूजिशियन फैमिली में पैदा हुए थे। His grandfather Rasul Baks Khan was the Shahnai Nawaz of the भोजपुर किंग्स कोर्ट और उनके जो ग्रैंडफादर थे जिनका नाम रसूल बख्श था, वो भोजपुर कोर्ट के दरबार के सिंगर थे, वहां पर वो शहनाई बजाया करते थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players। और उनके जो फादर थे जिनका नाम रसूल बख्श था, उनके साथ साथ उनके पैटर्नल यानी कि बिलोंग टू द फादर्स ट्राइब, जो उनके फादर से जो बिलोंग करते थे, और भी जो लोग थे वो एक प्लेयर थे शहनाई के, बहुत ही अच्छी तरह से शहनाई बजाया करते थे। एक पैराग्राफ और देख लेते हैं। The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was passionate watching his uncle practice the शहनाई। और ये जो यंग बॉय है ना, अर्ली एज में ही ये फैसिनेटेड हो गया था अपने अंकल को देखकर, अपने मैटरनल अंकल को देखकर, अपने मामा को देखकर वो फैसिनेटेड हो गया था। बहुत ही कम उम्र में ही शहनाई बजाने का उनके अंदर शौक आ गया था। 3 साल की थी जब उनकी माँ उनको कहाँ ले जाती है, मैटरनल अंकल यानी कि उनके मामा के घर ले जाती हैं। वहाँ पर घर कहाँ पर था? बनारस में था, जो इसको वाराणसी के नाम से जानते हैं। वहां पर जो अपने अंकल को प्रैक्टिस करते हुए देखते थे, शहनाई बजाते हुए, तो इट वॉज रियली अ शॉकिंग, शॉक्ड हो जाते थे वो, और वहीं से उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो बाहर आई। So Bismillah Khan started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Benares, where Baks was employed to play the शहनाई। और बहुत ही जल्द ही जब वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने लगे, वो भी सीखने लगे, तो अपने मामा के साथ, अपने मैटरनल अंकल के साथ जाना स्टार्ट कर दिए, टेम्पल में जाना स्टार्ट कर दिए। उस टेम्पल का नाम था विष्णु टेम्पल, बनारस में ही था, विष्णु टेम्पल का नाम से उसे जाना जाता था, जहाँ पर वो वेयर बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर उनके अंकल को शहनाई बजाने के लिए रखा गया था। अली बक्स would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end। अली बक्स वहाँ पर शहनाई बजाते थे और अपने मामा को देखकर वो काफी ज्यादा कैप्टिवेटेड हो जाते थे, अट्रैक्टेड हो जाते थे कि किस तरह से वो शहनाई को बजा रहे हैं। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। बहुत ही जल्दी उनकी मामा ने सिखाना स्टार्ट कर दिया, प्रैक्टिस करना वो भी स्टार्ट कर दिए, घंटों घंटों उसकी प्रैक्टिस करते थे वो। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। और प्रैक्टिस के लिए वो कहाँ जाते थे? प्रैक्टिस के लिए वो 2 टेम्पल के पास जाते थे, टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा। गंगा नदी के किनारे
वो बैठकर वहां पर घंटों प्रैक्टिस करते थे सॉलिट्यूड में होकर, एकांत होकर। The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. घंटों प्रैक्टिस करने की वजह से, एकांत में बैठने की वजह से जो राग उनके गले से निकलती थी, जो साउंड वो प्रोड्यूस करते थे, उसने एक क्रांति ला दी शहनाई के वर्ल्ड में, शहनाई की दुनिया में उसने क्रांति ला दी। लगातार वो इम्प्रूव करते गए, अपने आप को इम्प्रूव करते गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब इंसान प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है ना, प्रैक्टिस करते रहे, आप करते रहे, आप करते रहे, डेफिनेटली विल सी वन डे बी वेरी क्लोज टू द परफेक्ट। आप परफेक्ट के बहुत ही करीब पहुंच जाओगे। लेकिन हम प्रैक्टिस करते कहाँ हैं? बस एक बार किसी चीज को पढ़ लिए, बस सोचते हैं कि बस हमें आ गया वो चीज, हम तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पैरा 5 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब कल में 6, 7, 8 और कितने पैरा इसमें हैं, शायद कुछ पैरा और बचे हुए हैं, मैं कल इसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच। अब इसे देखें और प्रैक्टिस करें और मीनिंग को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चंस को फ्रेम करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।